किस पर? हाँ, नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी की स्टेटमेंट पे मेरी व्यू क्या है, ये आपका सवाल है? मेरा सवाल ये है सर कि बीजेपी अब आप पे आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में हाँ, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। टाइम्स नाउ से प्रदीप दत्ता। जो सवाल पहले पूछे गए हैं उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। Asking for sabut in this particular case also, and every time Congress tries to distance itself from Digvijay Singh's statement, and today also you said that you don't agree with that. I agree with that. But why action is not initiated? We are a democratic party, okay, and we are not a dictatorship. We don't run our party with principles of coercion. We don't appreciate Mr. Digvijay's personal views. But the views of the party are above Mr. Digvijay Singh's views. The views of the party are generated from a conversation within the party. I would like to assure you that Mr. Digvijay Singh's views are outlying views. They are not views that are held by the by the center of the party. We are absolutely crystal clear that the armed forces do a job. They do a job exceptionally well. And they do not need to be providing proof for anything. Okay? आज तक से सुनील भट्ट। It is in the culture of our party, right, to allow conversations. And sometimes when those conversations happen, people who have extreme views air their views, right? So we try to manage a conversation. You see, in the BJP, in the RSS, there's no conversation. They just decide that this is what it's going to be, and nobody can talk after that, right? It's like demonetization. The Prime Minister gets up one morning and says, we're going to demonetize. Or like GST, where, you completely destroy the backbone of the country because you're not having a conversation. So we think a conversation is very, very important. And sometimes, of course, there are people in every conversation who will say ridiculous things. And in this case, I'm sorry to have to say this about a senior leader. He said a ridiculous thing. आज तक से सुनील भट्ट। नमस्कार राहुल जी, मेरा नाम सुनील भट्ट है, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप से। राहुल जी, आप लगातार कन्याकुमारी से आ रहे हैं, पदयात्रा करके आ रहे हैं, आप बेरोजगारी का विषय उठा रहे हैं, आप महंगाई का विषय उठा रहे हैं, लेकिन कल मंच से जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया, जो आपत्तिजनक बयान दिया, आपको नहीं लगता कि जो आपने अब तक इतनी मेहनत की है उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने पानी फेर दिया एक कमेंट से? राहुल जी, पूरा प्रश्न सुन लीजिए। दूसरी बात, राहुल जी, कई विषय हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस पर आप सरकार को कॉर्नर कर सकते हैं। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर कहा, तब अधीर रंजन चौधरी साहब वहीं बैठे थे। Brother, are you a political advisor or you a journalist? Sir, listen to my question. It's not a question. Sir, I'm coming. You're giving a speech. No, listen to my question, sir. Sir, I'm saying that Union Home Minister Amit Shah said on the floor of the House
that it was the Modi government which provided jobs to the Kashmiri Pandit youth. And he said he asked Adhir Ranjan Chaudhary, he challenged him that आपने कितने दिए हैं मुझे जरा बताइए. But the fact is that it was Manmohan Singh's government which gave these jobs. लेकिन आपकी पार्टी के पास तथ्य नहीं, आप काउंटर क्यों नहीं कर पाते हैं सरकार को? इनफैक्ट ये आंकड़ा हमारे पास है, ये आंकड़ा हमने रखा है. कल कश्मीरी पंडित्स का एक डेलीगेशन आया, उनसे हमारी बातचीत हुई. कश्मीरी पंडित्स के डेलीगेशन ने हमें बताया कि जो भी हुआ है यूपीए के टाइम, मनमोहन सिंह जी के टाइम हुआ है. उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उनको पॉलिटिकल हथियार जैसे यूज करती है. उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो उनको फोर्सिबली वापस वैली में भेज रही है, मरने के लिए भेज रही है, वो गलत है. वो सब उन्होंने बोला और वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है. ठीक है, तो और उसको हम दोहराते रहते हैं. नेटवर्क न्यूज 18 से व्हाट वाज द पहला सवाल? My first question was that you have been, on Padyatra for last many months now. Yeah. And yesterday from your podium, Digvijay Singh made, controversial remarks. No, I don't think so. I don't think so. I think the yatra has achieved something fundamental and very powerful. What the yatra has done already, and this cannot be changed now. It has shown that there are two visions of India. One is a hate-filled, arrogant, cowardly vision, and another is love-filled, embracing, brave vision. And it has made those two visions absolutely crystal clear, right? Millions of people, not just myself, millions of people have walked across the breadth of this country. They have supported this yatra. And this yatra has changed the narrative in the country. You in the media might not like to accept it, but it's a fact, right? And nothing can change that. One or two comments, that are said by a leader are not going to change the fundamental fact that the yatra has been a success. The yatra has brought India together. The yatra has shown that Indian people believe much more in love and affection than in hatred and anger. So I am quite pleased by what this yatra has achieved. नेटवर्क न्यूज 18 से मनोज कौल. सर, मैं मनोज कौल. सर, आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो जिस तरह से आपने ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है इसका कोई पॉलिटिकल मिशन नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जब भी आप कहीं पर भी आपने भाषण किए, कल के भाषण की बात करें या अभी आपने जो इनिशियल रिमार्क्स दिए, उसमें आपने बीजेपी को निशाना बनाया है. तो क्या हम ये माने कि इस यात्रा के जरिए आप एक ये मैसेज देना चाहते हैं अपने वर्कर्स को या जो अपोजिशन है उसको एकत्रित करने के लिए ताकि आप बीजेपी का मुकाबला कर सकें? नहीं, देखिए, ये यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा है. ये हम सब के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के यात्रीज के लिए, मेरे लिए पर्सनली एक तपस्या सी है. इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, बहुत प्यार मिला. 3,800 किलोमीटर की यात्रा है. कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो अगर कांग्रेस पार्टी का ऐसी यात्रा में इन्वॉल्वमेंट होगा तो थोड़ी पॉलिटिकल बातें तो होंगी, वो नेचुरल है. लोग हमसे पूछते हैं, कश्मीरी पंडित्स ने हमसे पूछा कि वो आकर हमसे मिलना चाहते हैं. हम मिले. अब उसमें उन्होंने पॉलिटिकल बातें उठाई. उन्होंने कहा कि गवर्नर ने हमें अब्यूज किया है. उन्होंने कहा कि देखिए, हमें वापस श्रीनगर भेजा जा रहा है, वहां कंडीशंस नहीं है, हमारे लोगों को गोली मारी जा रही है. अब वो मेरे पास आए और अब मैं उनकी बात ना उठाऊं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो अगर हम यात्रा कर रहे हैं और लोग हमें बातें बता रहे हैं, हमें वो बातें तो उठानी पड़ेंगी. अगर किसान हमारे पास आए और कहे भैया देखो मेरे
बीज खराब निकले, और अगर मैंने मतलब 100 दिन की यात्रा में वो बोला ही नहीं, तो फिर वो किसान कहेगा ये भारत जोड़ो का क्या मतलब है? मैंने जो आपसे बात बोली आप बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरी आवाज आप क्यों नहीं उठा रहे हो? तो ये हो रहा है।